Hello students, how are you all? Welcome to your grammar class. In this lesson today, we are going to learn about pronouns. We shall learn the definition of different kinds of pronouns and find them in the sentences. You'll also learn about 8 kinds of pronouns that are found in English language. Before directly going to the definition of pronoun, let us read two paragraphs. These two paragraphs are similar, but there is a very little difference in them. First is Rini is a student. Rini goes to school every day. Rini finishes her homework on time. Rini helps her mother at chores. And next is in the yellow box, the next paragraph is written. It is the same, but there is a little difference. Rini is a student. She goes to school every day. She finishes her homeworks on time. She helps her mother at chores. You can see that these two paragraphs are similar, but what is the difference in them? जो पहला पैराग्राफ है वहाँ पे बार बार रीनी का नाम बार बार लिया जा रहा है, whereas in the second paragraph आप देखिए रीनी के जगह पे she का यूज़ हो रहा है. ये जो she का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, दिस इज़ कॉल्ड प्रोनाउन. तो कोई वर्ड जो नाउन के बदले में यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है? ताकि नाउन को बार बार नहीं हम लोग हमें बोलना पड़े. If we keep on taking the name of somebody, then the thing will not sound well. उसे सुनने में अच्छा नहीं लगेगा. That's why pronouns are used. So what is the definition of pronoun? Let's see. Pronoun is used in place of specific noun mentioned earlier in a sentence. तो नाउन में एक सेंटेंस में जो नाउन यूज़ किया गया है उसी का ही रिप्लेसमेंट है प्रोनाउन. So that we do not have to keep saying or writing a particular noun. इसका कारण क्या है? Why do we use pronoun? So that जो noun है वो उसको बार बार हम use ना करें. Let's see the example. Michael is a good boy. He gets up early in the morning. So he is the replacement of Michael. Michael के बदले क्या बोल रहे हैं हम लोग? He. So he is a pronoun. Next में है the coach selected several key points. He यहाँ पे दो nouns है. Here are two nouns, coach and several key points. Next sentence देखो. He wanted the team to memorize them. He is the pronoun. Again another pronoun is them. तो ये जो he है ये किसको replace कर रहा है? कोच को. And them is replacing several key points. Now two important terms that you have to remember. What is called antecedent and what is called referent. The word or phrase that a pronoun replaces is called antecedent. जो pronoun जो भी word को replace करता है, noun या pronoun को noun या noun phrase को replace करता है उसको बोलते हैं antecedent. ठीक है? And the pronoun he is called referent. और जो pronoun use होता है उसको बोलते हैं referent. देखो in this sentence ये जो द कोच के बदले में क्या यूज़ हुआ है? ही यूज़ हुआ है. तो ही हो जाएगा रेफरेंट एंड कोच हो जाएगा एंटीसीडेंट. ठीक है? यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट एंड नोट डाउन इन योर कॉपी. Now, did you know that there are several kinds of pronouns and there are 8 kinds of pronouns? Okay, these 8 types of pronouns are subjective pronoun, object pronoun, possessive pronoun, reflexive pronoun, intensive pronoun, relative pronoun and demonstrative pronoun and then interrogative pronoun. ये 8 जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है इसका कोई सीक्वेंस नहीं है. ठीक है कि एक के बाद इसके बाद ये आएगा, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है. ये कोई भी आ सकता है. एक मतलब कोई भी आप पहले या दूसरे में यूज़ कर सकते हो, बोल सकते हो. बट यही वो 8 प्रोनाउंस है जो आज आपको सीखना है. यू हैव टू लर्न अबाउट दिस 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन.
फर्स्ट इज सब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है? वर्क्स एज द सब्जेक्ट इन द वर्ब इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में वर्ब के जो सब्जेक्ट है, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करता है सब्जेक्ट प्रोनाउन। ये सब्जेक्ट प्रोनाउन नॉर्मली रिप्लेसेस, वो किसको रिप्लेस करता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीवियस सेंटेंस। प्रीवियस सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के जगह पे जो नाउन है उसको रिप्लेस करता है। ठीक है, लेट्स सी एग्जांपल। माइक कैंट अटेंड द पार्टी। माइक इज द नाउन। ही हैज gone to his grandparents। he is the pronoun। और ये जो he यूज हुआ है ये सब्जेक्ट के जगह पे यूज हुआ है। इसी सेंटेंस का सेकेंड सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? he। तो क्योंकि ये he सब्जेक्ट की जगह पे यूज हो रहा है, that's why it is called subjective pronoun, subject pronoun। okay, in the next sentence, let's see the next sentence। Martha is a good storyteller। Martha is noun। She told a ghost story that scared everyone। she जो यूज हुआ है ये किसके बदले में यूज हुआ है? मार्टा के बदले में यूज हुआ है। एंड she, ये जो सेकेंड सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट है she। तो ये जो प्रोनाउन है सब्जेक्ट की जगह पे है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट प्रोनाउन। Similarly, you should read the third example also। We'll move to the next category, that is object pronoun। जैसे आप लोगों ने देखा था कि सब्जेक्ट प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह काम करता है, सिमिलरली ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वर्क्स एज ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, रिप्लेसिंग द एंटीसीडेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो है ये प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। दिस फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इज ऑल्सो यूज आफ्टर ए प्रीपोजिशन। इसको प्रीपोजिशन के बाद हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन के बाद। जैसे द एग्जाम्पल, आई विल गिव यू अ प्रेजेंट ऑन योर बर्थडे। हियर यू, ये देखो आई विल गिव यू, मैं किसको दूंगी? तो यू इज द आंसर, यू इज द ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो यू इज क्या है? ये प्रोनाउन है, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, आई हैव ग्रेट आइडिया फॉर यू, सो दिस इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। प्रोनाउन तो है, ये तो आपको दिख रहा है, और ये कहाँ पे है? देखो आफ्टर प्रीपोजिशन यूज हो रहा है, और ये क्या है? दिस इज एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई इट इज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। नेक्स्ट इज टेल हर दैट यू विल टेक द जॉब। टेल हर, किसको बोलो, किसको बोलने को बोल रहा है? हर। तो हर इज द ऑब्जेक्ट एंड इट इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। हर प्रोनाउन है, ये आपको पता ही है, और ये ऑब्जेक्ट की जगह पे काम कर रहा है एज एन ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। रीड द नेक्स्ट एग्जांपल एंड फाइंड आउट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। नेक्स्ट इज possessive pronoun। Let me tell you the word possessive। possessive का मीनिंग होता है that word that show you possession और belongingness। मतलब मेरा चीज़, तुम्हारा चीज़, ये इसका है, ये मेरा है, ये आपका है। ये जो हम लोग बोलते हैं, और जो वर्ड इसको इसका सेंस देते हैं belongingness का, उसी को बोलते हैं possessive words। ओके, तो possessive pronoun क्या है? Let's see। Possessive pronoun replaces the noun of the possessive adjective। ठीक है, possessive adjective क्या है? my, our, your, her, his, their, ये सब possessive adjective है। और possessive pronoun का काम क्या है? replacing possessive adjective plus noun। so ये क्या करता है? possessive adjective plus noun को replace करता है। okay, the pronoun who has also a possessive form whose। who का possessive क्या है? whose। और possessive pronouns क्या है? mine, yours, ours, hers, theirs, its, etc। ठीक है, तो देखो let's see the example now। I thought my bag was lost but the one Keswick found was mine। तो
माई बैग वॉज लॉस्ट। तो ये जो है माइन, माइन कौन सी वर्ड को रिप्लेस कर रहा है? माइन, द वर्ड माइन इज रिप्लेसिंग दिस माई बैग। माई बैग में ये जो है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है एंड बैग है नाउन। तो मैंने बोला था कि पॉजिटिव प्रोनाउन क्या करता है? पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड नाउन को रिप्लेस करता है। ठीक है। इन द नेक्स्ट सेंटेंस लेट्स सी, देयर वेकेशन विल स्टार्ट नेक्स्ट वीक। उनका वेकेशन क्या होगा? नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा। एंड आवर्स इज टुमारो। हमारा जो है वो हमारा वेकेशन कब स्टार्ट होगा? टुमारो। ठीक है। तो ये जो आवर्स इज द प्रोनाउन, ये किसको रिप्लेस कर रहा है? आवर वेकेशन। हम लोग आवर वेकेशन ना बोल के क्या बोल रहे हैं? आवर्स। So this word is replacing our vacation. So this word is called, ours is called possessive pronoun. Okay. तो again let me tell you, फिर से मैं बोल देती हूँ, possessive pronoun का काम क्या है? possessive adjective plus noun को replace करना। ठीक है। Let's see next thing, that is reflexive pronoun. Reflexive word came from the word reflection. जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपको क्या दिखता है? You see your own image. Similarly, reflexive और pronoun भी सब्जेक्ट को ही फिर से दोहराता है। ठीक है। So reflexive pronoun redirect a sentence or a clause back to the subject. एक सेंटेंस को फिर उसी सब्जेक्ट में रीडायरेक्ट कर देता है। ठीक है। A reflexive pronoun comes when subject perform its action upon itself. जब एक सब्जेक्ट कोई काम अपने ऊपर ही करता है, ठीक है, तो उस समय हम लोग यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे itself is the reflexive pronoun, और ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है किससे खत्म होता है? सेल्फ। दिस वर्ड सेल्फ इज द इंडिकेटिव। सेल्फ या सेल्व्स से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन खत्म होता है। लेट्स सी द एग्जांपल। सिंस शी इज हर ओन बॉस, शी गेव herself a raise. herself, ठीक है, ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। किसको रेज दिया है? रेज मतलब यू कैन से इंक्रीमेंट। ठीक है, तरक्की। सो हर सेल्फ, खुद को ही रेज दिया है। हर सेल्फ एंड शी, तो दिस सब्जेक्ट एंड दिस प्रोनाउन, दीज आर सेम पर्सन, कोई अलग नहीं है। तो ये रिफ्लेक्शन दे रहा है, दैट्स व्हाई इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज शी अलाउड हर सेल्फ। वो किसको अलाउ किया है? खुद को ही अलाउ किया है। सो दिस इज रिफ्लेक्सिव। ओके, रिफ्लेक्शन दे रहा है। एंड देन द कंप्यूटर रिस्टार्ट इटसेल्फ। कंप्यूटर ने किसको रिस्टार्ट किया है? खुद को। ठीक है, इटसेल्फ। तो कंप्यूटर एंड दिस सब्जेक्ट एंड द प्रोनाउन डिनोटिंग द सेम थिंग, सेम पर्सन और सेम थिंग, इसलिए इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलेंगे हम लोग। नाउ लेट्स डिस्कस इंटेंसिव प्रोनाउन। ठीक है, इंटेंसिव प्रोनाउन क्या है? इंटेंसिव, द वर्ड इंटेंसिव टेल्स यू, वेट अ मिनट, द वर्ड इंटेंसिव मतलब किसी चीज को जोर देना, एम्फेसिस देना। ठीक है, इम्पोर्टेंस देना किसी चीज के ऊपर। इसका और एक नाम है, दैट इज एम्फेटिक प्रोनाउन। द अदर नेम ऑफ intensive pronoun is emphatic pronoun. Okay, so intensive pronouns add emphasis और importance, किसी चीज़ पे जोर देता है और ज़्यादा importance दिखाता है किसी चीज़ के ऊपर। but do not act as an object. very important point about intensive pronoun, they do not act as object. ये object की तरह काम नहीं करता है। ठीक है, they can appear right after द सब्जेक्ट। ये कभी कभी तुरंत सब्जेक्ट के बाद ही दिखता है हमें।
हमें मिलता है सब कोई सब सेंटेंस में। ठीक है, लेट्स सी सम एग्जांपल। आई डू इट माई सेल्फ, आई डू इट माई सेल्फ, माई सेल्फ इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। मैंने बोला था कि ये जो इंटेंसिव प्रोनाउन है दे कैन नॉट एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे इस सेंटेंस में देखो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है इट, आई विल डू इट, इट इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, माई सेल्फ इज नॉट द ऑब्जेक्ट, इट इज नॉट द ऑब्जेक्ट बट इट इज प्रोनाउन। ओके, इट इज इंटेंसिव प्रोनाउन। इसका मीनिंग क्या है, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं खुद ही ये करूँगी। सो दिस इज गिविंग एम्फेसिस, गिविंग इम्पोर्टेंस, तो दिस इज इंटेंसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट में देखो, आई माई सेल्फ सॉ द मिसिंग बोट इन टू द हार्बर, मैं खुद ही मिसिंग बोट को हार्बर में देखा, खुद ही। सो दिस वर्ड इज गिविंग एम्फेसिस अगेन ऑन आई, आई पर एम्फेसिस दे रहा है या जोर दे के बोल रहा है। नेक्स्ट में देखो, वी इंटेंड टू डू ऑल द वर्क आवरसेल्फ, हम सारे काम खुद ही करना चाहते हैं, खुद ही मतलब जोर दे के बोल रहा है कि हम ही करना चाहते हैं। तो दिस इज इंटेंसिफाइंग, जोर दे के बोल रहा है, तो दिस इज एम्फेसिस, एम्फेसिस, राइट।